डू यू थिंक वॉर्स इसलिए होते हैं क्योंकि किसी रईस आदमी को और पैसे बनाने हैं? Absolutely. 100%. Yes. There's I have no other reason. always said that the only winners in wars are defense companies. Everybody else is losing. दोनों तरफ के लोग मरते हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत पेन होता है. किसको फ़ायदा हो रहा है? जो भी मिलिट्री एड दे रहे हैं जो देश, अमेरिका देता है, तो मिलिट्री एड का क्या मतलब है? Those contracts will come back to American companies. They will make money. They will hire more people. They will sell more guns, more missiles, more whatever they're selling. And that's how the cycle runs. But wars usually या तो ईगो के लिए या अपनी इंटरनल लोगों को खुश करने के लिए नहीं होता. There are a lot of factors. You know, there's politics, obviously. It has to serve somebody's purpose. It is believed that the Israel war has stretched this far because the prime minister wants to remain in power. The moment the war ends, then he has to face the law and all of that. So there are a lot of factors, but the factor that is constant is this money making. Yes. The military, the defense companies, military industrial complex really benefits, largely the American one. So they lobby these prime ministers and different people from different governments and try to push war? So private companies have their own deals, but the US government also facilitates. I think last year they did deals worth $100 billion. US government facilitate कैसे करती है? मतलब सरकारें करती है ना facilitate, जैसे कि आप तो करो, हम साथ में आपके आप कर. नहीं, मतलब अगर जैसे अमेरिका को सऊदी अरेबिया को किसी तरह की डिफेंस की मदद करनी है, तो एक तरीका तो ये है कि रियाद डायरेक्टली जाके किसी अमेरिकन डिफेंस सप्लायर से बात करे. बट बिकॉज डिफेंस इज स्ट्रेटेजिक एसेट, देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. सो इन सम केसेस द गवर्नमेंट, सो like the drone deal that has been done between Washington and New Delhi, there is government involvement. Drone Washington नहीं बना रहा है, वहाँ की एक कंपनी बना रही है, but it has been done via the government. That is how it works. God, but do you feel ये जो हर जगह छोटे छोटे wars हो रहे हैं, is this start of like a larger war or change of world order? So, 3 तो बड़ी लड़ाइयाँ हैं जिनके बारे में रोज़ हेडलाइंस आती हैं, यूक्रेन में, गाज़ा में और अब सीरिया में. उसके अलावा यमन में कब से चल रहा है, प्लस टेंशन चल रहा है ना यूएस चाइना के बीच में, ताइवान को लेकर. That is not a military conflict. Not yet, but I'm talking about pure play military conflicts. Okay. So there are more than 30 armed conflicts in our world. Even people don't talk about Sudan. The government versus the paramilitary group RSF. They've been fighting since April last year. Some 11 million people have been displaced. It is a major humanitarian crisis. Nobody cares about Sudan. It's in the back of beyond. The Sahel region, like I said, Mali, Burkina Faso, Niger, Myanmar, Yemen, Ethiopia. There are so many armed conflicts in the world that are happening right now. Okay, that is one aspect. The second kind of conflict is related to trade and the push and pull. So Donald Trump versus China, or the Europeans saying that we'll not take Chinese EVs, and China putting pressure back with some sort of tariffs and blocks on European imports. There is a lot of, everybody's seeking leverage कि कैसे मैं एक ऐसी डील क्रैक करूं जिसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है और मेरे लोगों को फ़ायदा हो रहा है. That is what politics is about. Sometimes you use trade as your weapon. Sometimes you use actual weapons. Sometimes you use diplomatic pressure as your weapon. You use all kinds of tools to basically put pressure and gain advantage. And that has been how the world has functioned always. Now, जो आपने वर्ल्ड ऑर्डर चेंज की बात की, तो उसमें इंटरेस्टिंग ये जो साल रहा है 2024, इसमें 50 से ज़्यादा देशों में चुनाव हुए. और क्योंकि पहले एक पैंडेमिक था, उसके बाद एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, महंगाई बढ़ गई सब जगह, लोगों, इवन अमीर देशों में बहुत समस्या थी लोगों को, तो उसका प्रेशर सरकार पे पड़ता है कि आप महंगाई कम नहीं कर पाए. तो ये 50 से ज़्यादा देशों में जो चुनाव हुए, उनमें ज़्यादातर देशों में जो इनकम्बेंट सरकार है वो हार गई. नए लोग आए हैं. अब नए लोग अपने नए विचारों के साथ आते हैं, अपने एजेंडा के साथ आते हैं, अपने वर्ल्ड व्यू के साथ आते हैं और अपने हिसाब से चेंजेस लाना चाहते हैं. मैं आपको यूके का एग्जांपल देती हूँ. यूके में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, उसके बाद अब लेबर पार्टी आ गई.
इन्होंने आते ही पहले क्या किया, यूके में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का एक प्लान था, रवांडा प्लान। तो जो असाइलम सीकर्स आते हैं, जो लोग शरणार्थी आते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, और वहाँ के लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास नौकरियाँ नहीं हैं, पर हमारे टैक्स के पैसे से ये इन लोगों को घर दिए जा रहे हैं, इन लोगों को खाना दिया जा रहा है, तो हमारा वेल्थ शेयर हो रही है इनके साथ, नहीं होनी चाहिए, इनको वापस भेज दो। ओके, सो द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट सेड ओके, वील डू इट। व्हाट वी विल डू इज वी विल सेंड दीज पीपल टू रवांडा। हम प्लेन से इनको भेजेंगे। हमने रवांडा सरकार को पता नहीं कितने 100 मिलियन दे दिए हैं, वो इनके लिए घर बनाएंगे, वो इनकी असाइलम एप्लीकेशंस प्रोसेस करेंगे। अगर जैसे कोई अफगानिस्तान से आया, वो आया तो लंदन रहने के लिए, पर उसको लंदन से रवांडा भेज देंगे। रवांडा में उसकी एप्लीकेशन चेक होगी, उनको समझ में आएगा तो वो कहेंगे कि ठीक है इसको रहना है, नहीं तो इसको वापस जाना है। सो दे विल प्रोसेस। वापस कहाँ जाना है? अफगानिस्तान जाना है या कहीं और जाना है, दे विल फिगर इट आउट। दिस वाज द प्लान। नाउ द न्यू गवर्नमेंट हैज कम, इट हैज जंक्ड द प्लान, सेइंग दिस विल नॉट वर्क। हम सबको एक्सेप्ट। रवांडा के पास ऑलरेडी पैसे चले गए, उन्होंने कुछ फैसिलिटीज भी बना ली हैं लोगों को रखने के लिए। एक भी प्लेन यूके से उड़ा नहीं है। देयर इज अ पॉलिसी चेंज। नाउ रवांडा सेज वी विल नॉट रिटर्न द मनी वी हैव इन्वेस्टेड इट। मालदीव्स में सरकार बदलती है, तो पहले जो सरकार थी वो प्रो इंडिया थी, उसके बाद ये आए मुइज़ू, इन्होंने कहा इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडिया इज अ बिग ब्रदर, इंडिया इज, वी विल वर्क विद चाइना। साल भर हुआ, बहुत शोर मचाया इन्होंने, अब उनको समझ आ गया है कि इंडिया के बिना होगा नहीं, क्योंकि इट इज़ योर नेबर। बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुई, हमारा बहुत अच्छा था, अब मोहम्मद यूनुस आए, उन्होंने कहा इंडिया ऐसे कर रहा है, इंडिया वैसे कर रहा है, बिग ब्रदरली भी नहीं, वो तो काफ़ी मतलब बुलिंग एंड थिंग्स लाइक दैट देव सेड। सो माई लिमिटेड पॉइंट इज दैट जब सरकार बदलती है तो पूरे उस देश का अप्रोच कुछ इश्यूज पे बदल जाता है। तो जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज करने की बात है, कम बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, global order changes or global dynamics and equations change because of a lot of factors. There is conflict, there is politics, there are other factors that you did not account for, there is climate change, a whole lot of things happen. और उन सब से एक फ्लक्स क्रिएट होता है। तो कभी लोग साथ में पार्टनर्स होते हैं, फिर कभी अलग हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो वेस्टर्न देश हैं जो अपने आप को एलाइज बताते हैं, आपको याद होगा कि US, UK, France, all of these they are close, right? But then out of the blue, a couple of years back, they announced something called AUKUS. So much for watching this episode till the end. You know 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं आपके लिए। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में ग्रोथ होगी इस कॉन्वर्जेशन को सुनने के बाद, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.